Moving in progress. हेलो। मेटलॉग वाला स्क्रीन आया है? हेलो, हमें ऑडिबल? मेटलॉग का स्क्रीन आया है ना? Yes, sir. Okay. So you are in the multimeter part. Two things we have still remaining to measure: source voltage and the output voltage. So in the multimeter, we will be using to measure the source voltage through this, and the voltage through this. The output voltage through load is the output voltage. We'll measure this in the second port. Voltage coming out of the source is the source voltage. It will be measured in the first port. Let's reprogram the multimeter. This is the available measurements that we have in the multimeter.
The first one is the source voltage, that is the second option here. It is selected, and the selected measurement is the source voltage. Then we are selecting the load voltage, that is the output voltage. You can select the first one also in the first part, that is the output in the first part, but just like we have seen the graphs chronologically in the graphs arranged in the theory part, we will do it likewise. So this is the RLC voltage selected like this, and update, close. Now let me increase the size of this. Increase the DMAX. Okay. This multimeter will be connected here. The second port is the output voltage connected here. The first port is the source voltage connected here. Let me rename these things. This is the output voltage. Output voltage. This is the source voltage. Okay. I think everything is renamed like this. Now we'll see the initial graph. Then we will go on changing as per जैसे जैसे हम लोग को change चाहिए होगा, we'll do make the changes accordingly, and the graphs will get better. Okay. Now let me run the experiment first. Run the sound. Double click on the scope. Obviously, the first it is supposed to come like this. We need 5 graphs. We will first separate the 5. View, layout. We'll select. See, 5 options are selected. Then the graphs will come out like there are the 5 graphs. Now the changes in the parameters will be started. First change. I'll share you the MATLAB screen. First, here the peak amplitude voltage was 100 volt. The AC voltage source, the peak amplitude was 100 volt. We'll take current as 1 ampere. So for simple calculation, obviously, for simple calculation, we will change this load. Double click on the load. Block parameter. Block parameter was selected 1 ohm. I'll do it 100 ohm. For simple calculation, since V voltage is 100, resistance is 100, the graph in the current graph of the current will be 1 ohm, 1 ampere. That's it, nothing else. Okay, applied. Okay. Now, since we are using AC voltage source, we will be changing the stop time. We will be changing the stop time to 0.1. Then run the program again. You will see some improvement. It will need more improvement. See here is the scope. It has some improvement. You need more improvement. Let's check the diode voltage. It will be way smoother than these things. Okay, we'll make this smooth. And there are
Okay, let me show you one thing. Here is the source current. See, the source current is supposed to come like this. It will always come like this, like a sine wave. So for the time being, for some time, I'll remove this one, the source current, so that you can have a clear view of these things: the output voltage, diode voltage, and diode 2 voltage. There are more changes in these three graphs. So for time being, I'll be removing this one, the source current, so that you can have a better view of this. Once you have the better view and better idea of these things, since these are the parameters which are supposed to be changed, they are supposed to be through a lot of changes, right? So I'll remove this one for some time. Let's go to the removing part. Okay, let's remove the current measurement part. We'll bring this back after some time, after we see the required changes in the diode voltage and input output voltage. There will be more changes in those things, right? Let me change this, and this will have 4 signal ports, 4 input ports. We don't need the 5th one for some time. I'll come back to that. Now let's run it again. Okay, sorry, before that, I already told you in the previous class the use of continuous power guy and discrete power guy. So it is in continuous. For a better view of the graph, we will do it discrete, make it discrete. Okay, run the simulation again. It's done. Right, double click on the scope. The scope. We selected more parts here, so the layout will be reduced to 4 since you are looking for. Yes, here it is. Now, if you see, there are some problems in here. What are the problems? Number one, in the second graph, see the PDF. Here is the PDF. This graph is okay, perfect. There is a change in this one. Here, the graph is above the axis in the positive part, positive half cycle. But in our graph, is it in the positive half cycle or the negative half cycle? यहाँ हम लोग कहाँ पे है? It's in the negative half cycle, है ना? हेलो? Yes, sir. कोई आइडिया हुआ? यहाँ पे एक जगह तुमको पोलैरिटी का चेंज जो मैंने तुमको पहले दिखाया नहीं, मैटलैब में अभी दिखाऊंगा. देखो पीडीएफ देखो. पीडीएफ में तो मेरा थ्योरी पार्ट में एक्चुअली here is the negative pole, here is the positive pole. ठीक है? In the MATLAB, now let me show you the MATLAB. Now these are the important changes that you have not seen before and you will be seeing now. In the MATLAB, if you see in the load, there is a red mark. Have you seen a red mark? This is the red mark. दिख रहा है? Yes, sir. This red mark is the positive pole. यहाँ पे according to our theory ये negative होना चाहिए. ठीक है मीनाक्षी, तुम्हारे में आया है? नो सर, तुम्हारा जो वो मैटलैब है रेड मार्क नहीं दिखा रहा मेरा. दोनों साइड सेम है. तुम्हारा ग्राफ कैसा आया है स्कोप में? सर आप ही के जैसा आया है. ठीक है, ठीक है. क्योंकि हम लोग एक बार रोटेट किए हैं ना, तुमको ये इसको फॉलो करो. मैं क्या करता हूँ, मेरा मार्किंग फॉलो करना. इसको क्लिक करके इसको हमको इधर लाना है, क्योंकि
ये पॉजिटिव साइड मेरा इधर होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी, इसीलिए उल्टा ग्राफ। इसको मैं चेंज करूंगा, देखना यू विल सी द ग्राफ हैज चेंज्ड। क्लिक ऑन दिस नाउ, कंट्रोल आर रोटेट। ठीक है, ये थोड़ा हौच-पौच हो गया, इसको मैं सीधा कर देता हूँ। ये दिस, इसको हटा देते हैं इधर। ओके, तो बाद में देखेंगे क्या है, अभी इसका काम नहीं हो रहा है। इसका काम हो रहा है उसको देखेंगे पहले। इधर घूम गया इस ये, अब इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कर दिए, इसको कनेक्ट कर दिए यहाँ पे, घूम गया। नाउ सी द स्मॉल चेंज, रन द एक्सपेरिमेंट। डन, डबल क्लिक ऑन द स्कोप, देखो आया है सीधा। एक मिनट, पता नहीं तुम स्कोप देख पा रहे हो कि नहीं। हाँ ग्राफ आया है, देखो तो। हेलो, यस सर, आ गया। ग्राफ सीधा आया है पॉजिटिव हाफ में। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम एक है, फिर मैं पीडीएफ दिखाता हूँ। पीडीएफ में मेरा, अभी मैं इसी का काम करूंगा, क्योंकि ये ठीक करूंगा धीरे धीरे, इसके साथ वी वी आउटपुट के साथ VD1 VD2 सारा चेंज हो जाएगा एक साथ धीरे धीरे। बट आई विल शो यू वन एट ए टाइम, एक साथ नहीं करूंगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरा चीज, यहाँ पे मेरा VM मतलब पीक वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज जितना होगा यहाँ पे भी सेम आना चाहिए। द वैल्यू ऑफ VS शुड बी इक्वल टू V नॉट, यस और नो, अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी। इधर भी VM इधर भी VM, ठीक है ना। हेलो, पीडीएफ विजिबल है ना। हेलो, यस सर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी VS और V नॉट का वैल्यू मेरा सेम आना चाहिए। VM, इधर भी VM इधर, मतलब इधर मेरा लिया हो, कितना लिए थे पहले 100 वोल्ट्स, दिस इज ऑल्सो सपोज टू बी 100 वोल्ट्स। लेकिन ग्राफ देखो, मेरा मेरा आउटपुट ग्राफ स्कोप में है क्या, देखो स्कोप स्कोप आया ना। स्कोप में देखो ऊपर है 100 वोल्ट, नीचे है क्या? हेलो, नहीं सर। यहाँ थोड़ा कम है। मीनाक्षी तुम्हारा कितना आया है? 100 आया है? यस सर, ऊपर वाला 100 है। नीचे वाला? ऊपर वाला तो सोर्स वोल्टेज है, नीचे सोर्स। वाला 100 नहीं है सर। नीचे वाला 100 नहीं है, इसका रीजन एक है, मैं दिखाऊंगा अभी। 40। हाँ, नियर अबाउट 40 है इसका। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। यहाँ तुम एक नया पैरामीटर जो यूज किए हो तुम लोग, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मर मेरा, अब क्योंकि ये स्टेप डाउन हो रहा है उधर से इधर, उसके लिए देयर विल बी अ चेंज ऑब्वियसली। अब ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी भी तो आ रहा है ना इधर। आउटपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज इज ड्यू टू द ट्रांस रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, उसका पैरामीटर भी हमको लेना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, ये जो ट्रांसफार्मर है, हम डायोड का कॉन्सेप्ट से ये सोच सकते हैं कि 100 वोल्ट लिए हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायोड विल बी गेटिंग 100 वोल्ट्स। लेकिन वी आर यूजिंग अ ट्रांसफार्मर, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा हमको, नहीं तो कैसे कर देंगे। तो ट्रांसफार्मर के ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक पैरामीटर आएगा, दिखाता हूँ। ये आ गया ट्रांसफार्मर का पैरामीटर, ठीक है। ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग है, दिखेगा स्क्रीन में दिख रहा होगा। वाइंडिंग नंबर 1 विच इज इन द लेफ्ट साइड, जो सोर्स की तरफ है, और इधर वाइंडिंग 2 और 3। अब वाइंडिंग नंबर 1 का रीडिंग कितना है, देखो 735 किलोवाट, सॉरी किलो वोल्ट, है ना। V1 ब्लॉक पैरामीटर ऑफ द लीनियर ट्रांसफार्मर दिख रहा है। यस सर। तो ट्रांसफार्मर में एक बात बोलो, जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट होने के लिए मेरा ट्रांस रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1, है ना। मतलब N1:N2 इक्वल टू 1:1, इतना होना चाहिए, ठीक। तो N1:, उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा,
इधर का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज अगर सेम रेशियो में कर देंगे, V1:V2 इक्वल टू 1:1 कर देंगे अगर, तब हो जाएगा ना। देखो तो यहाँ पे जैसे 315 और इधर मेरे इनपुट है 735, इसको अगर हम चेंज कर देंगे, चेंज करके 315 कर देंगे, इनपुट का 315 ब्लॉक पैरामीटर में ध्यान से देखो। वाइंडिंग 1 में मेरा V1 कितना है, V1 है 315, E3 छोड़ दो, एक ही चीज है 315, वाइंडिंग 2 भी 315, ये भी 315। तीनों अगर सेम हो जाए, दोनों तरफ का वाइंडिंग अगर सेम हो जाए, तो मेरा ट्रांस रेशियो 1:1 हो गया, हो जाएगा ना। हेलो, यस सर। ठीक, 1:1 हो गया, तब मेरा इधर का जो इनपुट का जो करंट आ रहा है, आउटपुट का भी करंट, ये इनपुट का जो वोल्टेज आ रहा है, आउटपुट आउटपुट का भी वोल्टेज सेम आएगा। तो इसको अप्लाई ओके करेंगे, अप्लाई ओके। तब इसका काम क्या रह गया, ट्रांसफार्मर का काम क्या रह गया, ट्रांसफार्मर का काम रहेगा यहाँ पे 1:1 तो कर दिए, तो अब ये बोल सकते हो कोई फायदा नहीं होगा ट्रांसफार्मर लगाने का। ये टैपिंग के लिए है, दिस इज जस्ट फॉर द, ये जो मिड पॉइंट टैपिंग कर रहे हैं, सेंटर टैप कर रहे हैं, टैपिंग के लिए लिया, ठीक है। अब फिर से रन करवाएंगे, रन। इसके बाद भी और चेंज आएगा, लेकिन वन वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। डबल क्लिक ऑन द स्कोप, अभी थोड़ा कम है क्या, देखो ऑलमोस्ट देयर है, अभी भी थोड़ा कम है, ठीक है। इसका भी काम हो जाएगा, बंदोबस्त हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि देयर विल बी वन मोर चेंज। अब तुम फिर से एक चीज देखो, इसको मैं कर देता हूँ, इसको, इसका थोड़ा एयर और एक इफेक्ट चेंज होगा, मैं तुमको दिखाता हूँ। ये जो ग्राफ है, फिर से ग्राफ को फॉलो करो, ये 0 है, 0 टू यहाँ तक पाई है। अच्छा मीनाक्षी, तुम की मीनाक्षी यस सर जी। 40 से बड़ा है, 80 आप आया है कि 100 हो गया है तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज? नहीं सर, 100 टच नहीं किया है। 100 टच नहीं किया है ना, करेगा, एक पैरामीटर और चेंज होगा। फिर से ग्राफ फॉलो करो, फिर से मैं ग्राफ दिखाता हूँ। पीडीएफ में जाते हैं, फिर से देखो, पीडीएफ आया है, हेलो, पीडीएफ आया है ना स्क्रीन में? यस सर। ठीक, पीडीएफ में यस सर। अब देखो, V0 और VD दोनों का, ये भी होगा, VD2 भी होगा, तीनों के एक ही चीज, कॉमन चीज बोलना है, इसलिए मैं दोनों में दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक 0 टू पाई तक खत्म है, देखो, फिर पाई से उठ के 2 पाई तक खत्म है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, करेक्ट। सेम डायोड में देखो 0 टू पाई है, डॉट पाई से ये उठना शुरू करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में जाना शुरू करेगा, फिर 2 पाई में खत्म है। इट इज सपोज टू स्टार्ट एट पाई, इट इज सपोज टू एंड एट पाई, है ना, ठीक है। ये जगह ध्यान से देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पाई पॉइंट है, पाई से फिर शुरू होगा, इसके आगे पीछे नहीं होगा, इसका भी आगे पीछे नहीं होगा, ठीक। अभी देखो, अब तुमको मैं अपना ग्राफ दिखाता हूँ। ग्राफ में देखो, पाई में खत्म हुआ है क्या, देखो तो, ये हो, ये देखो, ये देखो, ये पाई में खत्म हुआ है क्या, कि पाई के आगे खत्म हुआ है, पाई के मतलब और लैगिंग किया है, किया कि नहीं किया है, बोलो तो। किया है सर। ठीक, अब फिर हम लोग नया पैरामीटर में जाएंगे, ट्रांसफॉर्मर में जाएंगे, इसका एक इफेक्ट है। ट्रांसफॉर्मर में डबल क्लिक करेंगे, इसका ब्लॉक पैरामीटर आएगा, ब्लॉक पैरामीटर में नाउ विल सी वन मोर थिंग, ब्लॉक पैरामीटर है ट्रांसफॉर्मर का, देखो तो, शेयर हुआ है स्क्रीन में, हेलो, यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसका वाइंडिंग का है, VRMS है, रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है, ये VRMS हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया। अब ट्रांसफार्मर का जो सेकंड, इधर का जो ट्रांसफार्मर का जो एक इंडक्टिव इफेक्ट है, जो ये इंडक्टेंस के लिए है, जो इंडक्टेंस है ना, इसके लिए एक इंडक्टिव इफेक्ट आएगा कि नहीं,
अगर इंडक्टिव इफेक्ट आएगा तो उसके लिए वोल्ट इधर मेरा लैगिंग होगा कि नहीं, लैग करेगा कि नहीं थोड़ा ग्राफ में? होना चाहिए कि फेजर डायग्राम जब पढ़े थे इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट, ट्रांसफार्मर में मेरा इंडक्टिव इफेक्ट तो है, थोड़ा है, लेकिन है तो थोड़ा इधर उधर तो होना चाहिए ना उसके लिए। तो उस इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसको हम जीरो कर देंगे, लास्ट वाला है इंडक्टिव इफेक्ट, जीरो, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, फिर अप्लाई, ओके, फिर मैं तो स्क्रीन में डन। अब देखते हैं नेक्स्ट चेंज करके मेरा कितना प्रोग्रेस हुआ है। डन, फिर स्कोप में डबल क्लिक करेंगे, देखो तो आया है, स्कोप आया है, देखो तो यस सर, आ गया यस सर। सर। ग्राफ आया कि नहीं? अब मेरा एक चीज करने में भूल गया था, मैं कर देता हूँ, मैंने ऑटो स्केल नहीं किया था ऊपर, तो एक एक्सिस दिखा रहा था, कर देता हूँ ऑटो स्केल। देखो ये जैसे जैसे ये 0 to π, पहला फर्स्ट डायोड का 0 to π ऐसे, फिर ये ऑफ रहेगा, फिर ये जब तो अल्टरनेट करके करेगा, ये डायोड 1 डायोड 2 का। देखो हम तो ग्राफ में इतना ही देख रहे थे, 3 गो, यहाँ पे तो पूरा बैक टू बैक दिखाता रहेगा। ठीक है, ये हुआ मेरा एक्चुअल ग्राफ लाने के लिए। जब हम नया चीज लिए, नया पैरामीटर, यहाँ पे एक ही नया पैरामीटर लिए थे, कुछ नहीं लिए थे, सिर्फ ओनली दिस वन, सॉरी ओनली दिस वन। इसके लिए जितना इफेक्ट है वो सारा न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा तुमको, तब तक ग्राफ नहीं आएगा। अब हम मेरा 5 आउटपुट चाहिए था, जो ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा चेंज मेरा जो 3 चीज में आता है, ये डायोड वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, ये तीन गो चीज में ज्यादा चेंज में था, तो इसीलिए मैंने फॉर सम टाइम मैंने वो करंट सोर्स हटा दिया था। तो क्योंकि मेरा पांचों करंट सोर्स भी, सोर्स का करंट भी देखना है, तो इसको फिर राइट क्लिक करेंगे, सिग्नल एंड पोर्ट, मेरा स्कोप में आएगा 5 गो पोर्ट, मेरा 5th पोर्ट विल बी, थोड़ा पीछे कर देता है थोड़ा, हाँ, the 5th port will be there, will be needing a multimeter, सॉरी मल्टीमीटर नहीं, गलत बोला, करंट मेजरमेंट एमीटर। इसको यहाँ पे फिर लगाएंगे, इसको यहाँ से डिलीट करो, सीरीज में लगाएंगे करंट मेजरमेंट, ठीक, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज, हाँ, will be connected to here and it will be connected to here। इसको कर लेते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, डन। दिस इज द सोर्स वोल्टेज, इसमें लिख देते हैं, लेट्स रीनेम इट एज सोर्स, सॉरी सोर्स करंट, नॉट सोर्स वोल्टेज, सोर्स करंट, सॉरी सोर्स करंट। ओके, लेट्स रीरन द एक्सपेरिमेंट, डबल क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे देखो दोनों एक साथ आ गया है, क्योंकि ओ सॉरी, हाँ स्कोप, यहाँ पे दोनों एक साथ शायद आ गया होगा इन द लास्ट वन, क्योंकि ये मैंने लेआउट 4 ग्राफ लिया था, यहाँ पे लेआउट चेंज करना पड़ेगा, व्यू लेआउट, चेकिंग, इसका क्या हो गया, हाँ देखो स्कोप आया है ना, हेलो ग्राफ आया है मेरा, यस ओके ओके। ग्राफ में देखो मेरा यस करंट, करंट में जो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, करंट में जो चेंज आने वाला था, मतलब करंट का रेटिंग आने वाला था, मैंने सोर्स का वोल्टेज लिया था 100 ओम, सॉरी 100 वोल्ट,
लोड लिया था मैंने 100 ओम, मेरा करंट आने वाला था कितना, 1 एम्पेयर आया है, 1 एम्पेयर। देखो तो यस सर। ग्राफ मेरा जैसा जैसा चाहिए था, आउटपुट वोल्टेज था रेक्टिफाइड, फुल वेव रेक्टिफाइड, फुल वेव रेक्टिफाइड आया है। सोर्स वोल्टेज मेरा जितना चाहिए था Vm, इसका भी Vm इक्वल टू Vm सेम आना चाहिए था, सेम आया है। अच्छा, डायोड 1 और डायोड 2 का मैं थ्योरी दिखाता हूँ एक बार, व्हाट यू आर सपोज टू गेट। डायोड 1 और डायोड 2 देखूंगा मैं, VD1 VD2, VD1 VD2 मेरा आने वाला था, इसका पीक आने वाला था 2Vm डबल, मतलब 100 वोल्ट का 200 वोल्ट इन द नेगेटिव साइड। VD1 में पाई टू 2 पाई में, मतलब दूसरा सेकंड वन से शुरू होगा, VD2 में पहला वाला से शुरू होगा, VD2 में ऑड नंबर 1, फिर 2 में ऑफ, फिर थर्ड में, और VD1 में इवन नंबर, मतलब दूसरा से शुरू होगा, और डबल वोल्टेज मतलब 200 वोल्ट से। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, देखो देखो, डायोड 1 में ऑड नंबर से दूसरा वाला, तो सॉरी इवन नंबर से दूसरा वाला से शुरू हुआ, फर्स्ट वाला ऑफ, दूसरा वाला से शुरू हुआ, फिर दूसरा, फिर फोर्थ, फिर सिक्स। डायोड 2 में मेरा पहला वाला से शुरू होगा, फर्स्ट, फिर थर्ड। अच्छा, मैग्नीट्यूड मेरा 200 वोल्ट, Vm का डबल, Vm था मेरा 100, ये हो गया मेरा 2Vm 200 200। ये मेरा सोर्स वोल्टेज जितना एक्सपेक्टेड था। लास्ट ग्राफ Vm बाई आर, इसको तो पता ही है Vm बाई आर। Vm मेरा 200, ऊपर 200, नीचे 200, सॉरी ऊपर 100, Vm 100, R 100, 100 बाई 100। ये इसका एम्पलीट्यूड आ गया 1, साइन कर्व, साइन वेव ऑब्वियसली, इसका आ गया 1 साइन वेव। सारा सही आया है, ठीक? कहीं पे कोई डाउट, कोई पैरामीटर या कोई कुछ देखना है तो बोलो। हेलो, हाँ सर। क्या है सर, कोई डाउट है कहीं पे, कोई पैरामीटर या नो ग्राफ में सर। कहीं पे? मीनाक्षी बना है? यस सर, बन गए। आउटपुट आया है, ग्राफ ऐसा आया है? यस सर। यस सर। ठीक है, वो पैरामीटर खुद से, कोई भी नया पैरामीटर लोगे जाओ धीरे धीरे चेंज करके देखना। अच्छा उज्जवल, तुम्ही को अटेंडेंस लेने बोले थे? यस उज्जवल सर। लिए थे? यस सर। यस सर। ठीक ठीक, तो भेज देना उसको, ठीक है? यहाँ पे ठीक है, कोई ठीक है। डाउट? डाउट है रे कहीं पे? ठीक है नो सर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर पैरामीटर कहीं चेंज करके देखना तो चेंज करके देख सकते हो। तो तुमको ये कहाँ से मिला था, ट्रांसफार्मर टाइप करके ढूंढे थे कि ऐसे मिल गया था? जो ट्रांसफार्मर यूज किए थे सर आज? मिल गया था, अच्छा ठीक है, दूसरा भी एलिमेंट्स में मिला था। एलिमेंट्स में, हाँ ठीक है, वहीं पे मिलेगा। दूसरा भी टाइप का ट्रांसफार्मर मिलेगा, ठीक है? वो भी ओके। तुम एक काम करना, इसको डिलीट करके इसको तो सेव करके रखना, सेव करना देख लेना सेव कैसे करते हैं। यस अगर सर। चेंज जब करते हो ना, कोई पैरामीटर हो, मान लो कि, रुको दिखाता हूँ। यस सर। इसके जगह तुम देखना और भी कुछ टाइप का ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है? वहां पे एलिमेंट्स में देयर विल बी वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। ऑब्वियस बात है, एक टाइप का ट्रांसफार्मर होता नहीं है, ठीक है? तो वो चेक करके देखना, मतलब चेक करके मतलब इसके जगह डिलीट करके, जब एक बार खुद से बनाना, जब ये इसको डिलीट करके यहाँ पे प्लेस करके दूसरा ट्रांसफार्मर प्लेस करके कोशिश करना, देखना कि सर्किट मेरा तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। ये इसको तो ज्वाइन करना है, जैसे यहाँ पे ओके तीन सर। को पॉइंट, यहाँ पे देखो सेकेंडरी में 3 जगह पॉइंट ज्वाइन होगा, एक डायोड का, ये डायोड का, ये एक बीच में जो टैपिंग होगा जनरेटर, उसका होता है कि नहीं होता है वो देखना पहले। पहले जब ओके सर। 3 जगह पॉसिबल होगा तब ना ठीक उस है सर। ट्रांसफार्मर का यूज है, पॉसिबल नहीं होगा तब तो यूज ही नहीं होगा। और कोई भी ठीक पैरामीटर है जब, सर। हाँ ठीक कोई है भी सर। पैरामीटर जब देखना, खोल के ऐसे कोई भी लेके पहले डबल क्लिक करके उसका
ब्लॉक पैरामीटर खोल के देखना क्या क्या है अंदर, और पॉसिबल चीज तुम्हारा क्या क्या तुम चेंज कर सकते हो। तो ग्राफ में जो तुमको दिखा, तुम लोग जब फेजर डायग्राम किए थे, जब भी किए थे, बेसिक में हो, मशीन में बहुत सारा फेजर डायग्राम देखे हो, तब तुमको इंडक्टिव इफेक्ट, कैपेसिटिव इफेक्ट जो ऑन पेपर दिखा था, यहाँ पे तुमको ग्राफ में दिखेगा। जो तुमको अभी मैं दिखाया मैंने, तो ये इंडक्टेंस मैंने 0 कर दिया, तो वो लैगिंग हो रहा था, लैग रेजिस्टिव हो गया पूरा, है ना, नहीं तो लैग दिखाता। ठीक, ठीक है। एनी डाउट? डाउट है तो बोलो, नहीं तो हो गया, आज बंद कर देता हूँ। कुछ है क्या डाउट? हेलो? नो सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, तब मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। See you in the next class.